Auzbillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum. Students, hope you will be fine. Today we are going to start new countdown, second edition, level 7. You have to open the page number 6 of your countdown. Operations on sets. In this chapter, you will learn define a set, about the set operations, use Venn diagram to define union and intersection of sets, verify the commutative and associative properties of sets. Maths flash. What are the elements of the set of natural numbers? हमारे पास नेचुरल नंबर्स के एलिमेंट्स कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स. If A is a set of odd numbers and B is a set of prime numbers, list 3 elements in the set A, U, B. U means union. U contain all the elements of A and B. A is a set of odd numbers. Odd numbers are 1, 3, 5, 7 up to so on. And B is a set of prime numbers. Prime numbers are 2, 3, 5, 7. A union B. A union B. U contain all the elements of A and B. हमने सबसे पहले क्या लिखा है? A के तमाम एलिमेंट्स लिखे हैं 1, 3, 5, 7 up to so on. U B 2, 3, 5, 7 up to so on. अब देखें हमें कहा गया है जस्ट लिस्ट 3 एलिमेंट्स इन द सेट A यूनियन B. हमने सिर्फ 3 एलिमेंट्स लिखने हैं A यूनियन B से. तो हमने कौन से एलिमेंट्स लिखे? 1, 2, 3 बिकॉज यू कंटेन ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A एंड B. Which type of set is a subset of every set? Empty set is the subset of every set. Basic concepts of sets. What is a set? A set is a group or a collection of distinct, well-defined objects. Distinct mean different in nature. Well-defined mean well-described. For example, a set of crayons in a box is a set. वो तमाम कलेक्शन जो हमारे पास वेल डिफाइंड हो और डिस्टिंक्ट हो वो हमारे पास क्या होती है? सेट होती है. फॉर एग्जाम्पल क्रेयॉन्स, ये क्या है? ये डिफरेंट इन नेचर होते हैं, इस वजह से ये हमारे पास क्या है? सेट है. नाउ कंसीडर अ सेट ऑफ इंटरेस्टिंग कार्टून्स. हियर द टर्म इंटरेस्टिंग कार्टून्स means different things to different people. This term is not clearly defined, hence it does not form a set. अब इसी तरह आप देखें हमारे पास इंटरेस्टिंग कार्टून्स. अब जो कार्टून्स किसी एक बंदे को पसंद है ज़रूरी नहीं है कि वही कार्टून किसी दूसरे के लिए भी इंटरेस्टिंग हो. ये टर्म हमारे पास इंटरेस्टिंग कार्टून्स जो है वेल डिफाइंड नहीं है. अगर ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारे पास सेट नहीं बनाते. पेज नंबर 7. The objects in a set are written within a pair of curly brackets. These objects are called member or elements of the set. Each member is said to belong to the set. The symbol this one is used to denote belongs to or is an element of or is a member of. हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं सेट के अंदर उनको हम किससे इनक्लोज करते हैं? विद इन कर्ली ब्रैकेट से. और ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? कि वो सेट के एलिमेंट या मेंबर हैं और हर मेंबर जो है वो उस सेट से बिलोंग करना चाहिए. और हम बिलोंग्स टू को डिनोट करने के लिए हम इस सिंबल को यूज़ करते हैं. इस सिंबल का मतलब है बिलोंग्स टू और इज़ एन एलिमेंट और इज़ अ मेंबर ऑफ. फॉर एग्जाम्पल, F इज़ अ सेट ऑफ आइसक्रीम फ्लेवर्स अवेलेबल एट एन आइसक्रीम शॉप. अब हमने आइसक्रीम का एक सेट लिया है जिसको हम कैपिटल F से डिनोट कर रहे हैं. देयरफॉर कैपिटल F इज़ इक्वल टू ब्रैकेट्स. देखिए हमने सबसे पहले ब्रैकेट्स को यूज़ किया है. देन वैनिला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो. ये तमाम जो हमने फ्लेवर्स लिखे हैं ये क्या है? मेंबर हैं उस सेट के. और हमने इन मेंबर्स को किससे सेपरेट किया है? विद इन कॉमर्स. अब आप देखें हियर चॉकलेट बिलोंग्स टू और अ मेंबर ऑफ F. अब आप देखें चॉकलेट जो है F का मेंबर है बट ऑरेंज डज नॉट बिलोंग्स टू F. लेकिन हमारे पास जो ऑरेंज है वो इस सेट में मौजूद नहीं है. इट्स मीन कि ऑरेंज जो है
F का मेंबर नहीं है. Orange does not belongs to F. How is a set represented? A set can be represented in three forms. First one is descriptive form, set builder form, tabular form. Descriptive form. A set described in descriptive terms or state in words the element of the set. For example, A is equal to first 5 natural numbers. Set builder form. A set written as a rule. Example, A is equal to x colon x is a natural number and x less than 6. A is the set of all x such that x is belong to natural number and x is less than 6. Tabular form. A set with the elements of the set written directly. For example, A is equal to 1, 2, 3, 4, 5. इस टेबुलर फॉर्म में हम क्या करते हैं, इस फॉर्म में हम डायरेक्टली नंबर्स को लिख देते हैं और इसको सेपरेट किससे करते हैं, विद इन कॉमास. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट्स? empty set. A set containing no elements. It is denoted by empty set or phi. वो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो उसको हम empty set कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, B इज इक्वल टू इंटीजर्स बिटवीन 0 एंड 1. अब आपको खुद पता होना चाहिए कि 0 और 1 के दरमियान में हमारे पास कोई भी एलिमेंट नहीं है. इस वजह से हमने लिख दिया B इज इक्वल टू empty set. Finite set. A set containing only a finite number of elements, or a finite set is one in which it is possible to list and count all the number of the set. वो सेट जो काउंटेबल हो, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो हमारे पास क्या होता है, फाइनाइट सेट. फॉर एग्जाम्पल, C इज इक्वल टू 1, 4, 9, 16. अब देखें हम इसको काउंट कर सकते हैं ना, 1, 2, 3, 4. ये सेट हमारे पास काउंटेबल है, तो इस वजह से हम इस सेट को क्या कहेंगे, फाइनाइट सेट. इसी तरह एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल डेज ऑफ वीक. अब आपको खुद पता है कि हम डेज ऑफ वीक को भी काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगी, फाइनाइट सेट होगा. इनफाइनाइट सेट. अ सेट विच इज़ नॉट फाइनाइट. वो सेट जो फाइनाइट नहीं होगा तो वो कौन सा सेट होगा, इनफाइनाइट सेट. Or an infinite set is one which is not possible to list and count all the numbers of the set. या फिर हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि वो सेट जो काउंटेबल ना हो वो कौन सा सेट होता है, इनफाइनाइट सेट होता है. फॉर एग्जाम्पल, D इज इक्वल टू 11, 12, 13, 14, 15 अप टू सो ऑन. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास एंडिंग डिजिट नहीं है, तो इस वजह से ये सेट हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट सेट है. डिसजॉइंट सेट्स. सेट्स विच हैव नो कॉमन एलिमेंट्स. ऐसे सेट जिनमें कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, एक जैसा ना हो. फॉर एग्जाम्पल, E इज इक्वल टू 2, 3, 4 एंड F इज इक्वल टू 5, 6, 7. अब आप देखेंगे दोनों सेट हमारे पास दो सेट हैं, बट इनमें कोई भी मेंबर, कोई भी एलिमेंट जो है सेम नहीं है. इस वजह से इस सेट को हम क्या कहेंगे, डिसजॉइंट सेट्स. ओवरलैपिंग सेट्स. सेट्स विच हैव एटलीस्ट वन कॉमन एलिमेंट. वो सेट जिसमें कम से कम, एटलीस्ट मीन कम से कम एक एलिमेंट हमारा कॉमन यानी कि सेम होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, G इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड H इज इक्वल टू 2, 3, 4. अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट सेम हैं, 2, 2, 3, 3. यहाँ पर हमारे पास दो एलिमेंट्स सेम हैं. इट्स मीन ये हमारे पास क्या हो रहा है, ये सेट कौन सा है, ओवरलैपिंग सेट्स है. इक्विवेलेंट सेट्स. Sets which have an equal number of elements. Equivalent sets need not have exactly the same element. Equivalent set का मतलब है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो दो सेट के क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए. इस फॉर एग्जाम्पल, J इज इक्वल टू 1, 4, 6 एंड K इज इक्वल टू A, B, C. अब आप देखेंगे दोनों सेट हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट है, बट हमारे पास क्या है, इनके सेम है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है. 1, 2, 3, 1, 2, 3. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं, 3. इट्स मीन ये कौन सा सेट है, इक्विवेलेंट सेट्स. कंसीडर A इज इक्वल टू प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम एंड B इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स लेस देन 9. बोथ सेट्स A and B have 8 members each, even though the members are completely different. These sets are equivalent sets. अब आप देखें हमारे पास, हमें पता है कि हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स हैं.
और जो नेचुरल नंबर हैं कंडीशन है लेस देन 9, 9 से कम जो नेचुरल नंबर हैं वो भी हमारे पास कितने हैं 8 नंबर्स हैं। अब देखें इन दोनों की नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, इस वजह से ये हमारे पास क्या है इक्विवेलेंट सेट्स हैं। हालांकि ये हमारे पास बिल्कुल डिफरेंट हैं, इनकी नेचर डिफरेंट है, ये बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन फिर भी ये कौन से सेट हैं इक्विवेलेंट सेट्स हैं, क्योंकि हम इक्विवेलेंट सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को देखते हैं। इक्वल सेट्स, सेट्स विच कंटेन द सेम एलिमेंट, वो सेट जिसके एलिमेंट्स भी अब सेम हो। फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 2, 4, 6 एंड M इज इक्वल टू इज X colon X इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2, X लेस देन 7। अब यहाँ हमारे पास जो L का सेट है ये हमारे पास क्या है 2 के मल्टीपल्स हैं, और यहाँ भी हम किसकी बात कर रहे हैं पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। कंडीशन क्या है X लेस देन 7। अब आप देखें इन दोनों सेट L और M के मेंबर्स क्या हैं सेम एलिमेंट्स हैं। कंसीडर A इज इक्वल टू इवन नेचुरल नंबर्स एंड B इज इक्वल टू मल्टीपल्स ऑफ 2। अब आप यहाँ पर फिर देखें बोथ सेट्स A एंड B कंटेन द एलिमेंट्स ऑफ 2, 4, 6, 8 अप टू सो ऑन। अब हमारे पास इवन नेचुरल नंबर भी कौन से होते हैं 2, 4, 6 अप टू सो ऑन, और मल्टीपल्स ऑफ 2 भी क्या है 2, 4, 6। तो इस वजह से ये दोनों सेट क्या हैं इनके सेम एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इस सेट को भी हम क्या कहेंगे इक्वल सेट्स। पेज नंबर 8, universal set, a set which contains all the sets under consideration. For example, if J is equal to January, July, June and A is equal to April, August or the sets under consideration. हमें पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल सेट कंटेन करता है तमाम एलिमेंट्स के, ठीक है, जो भी हमारे पास सेट होते हैं फॉर एग्जांपल J और A। अब इन दोनों सेट के तमाम एलिमेंट्स को कौन कंटेन करेगा U। देन हमने यू को लिखा है देन यू इज इक्वल टू मंथ्स ऑफ द ईयर। हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है मंथ्स ऑफ द ईयर है, इसी वजह से इस सेट को हम क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट। सबसेट, अ सेट दैट इज फुली कंटेन इन अ बिगर सेट, वो सेट जो कंप्लीट फुली कंटेन मीन पूरे का पूरा सेट बड़े वाले सेट में अगर मौजूद है, द बिगर सेट इज कॉल्ड द सुपर सेट। तब जब बड़े वाला सेट होगा हम उसको सुपर सेट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल A इज इक्वल टू 2, 4, 6। अब ये हमारे पास स्मॉलर सेट है एंड B इज इक्वल टू 2, 3, 4, 5, 6, 7। B हमारे पास कौन सा सेट है बिगर सेट है। अब आप देखें ये जो स्मॉलर सेट है ये कम्प्लीटली हमारे पास किस में है बिगर सेट में है 2, 4, 6। सो हम कहेंगे A इज अ सबसेट ऑफ B एंड B इज अ सुपर सेट ऑफ A। It is represented by A is a subset of B. A is a subset of B and B is a superset. Superset को डिनोट करने के लिए हम हमेशा कैसे लिखते हैं this one. B is the superset of A. Example A is equal to 2, 4, 6. Then the subsets of A are. अब इसके सबसेट, सबसे पहले हम सबसेट में क्या लिखते हैं हमेशा इम्पटी सेट। इम्पटी सेट को लिख दिया, अगेन इनको अलग अलग लिखा 2, 4, 6। अब हम दो का पेयर्स बना देते हैं 2, 4, 4, 6। नेक्स्ट जो हमारा पेयर होगा वो कंप्लीट सेट का होगा 2, 4, 6। नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट एंड एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अब हमें पता होना चाहिए कि जो नल सेट यानी कि इम्पटी सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होगा, और उसके अलावा जो सेट खुद है फॉर एग्जांपल यहाँ A है ये भी अपना क्या होगा सबसेट होगा। इसी वजह से कहा है कि जो भी सेट होता है वो अपना भी क्या होता है सबसेट होता है। ऑल अदर सेट्स आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट, और इसके अलावा ये जो तमाम बाकी सेट्स हैं इनको हम क्या कहेंगे प्रॉपर सबसेट्स। Write all the definitions of page number 6 to 8 with at least 2 to 3 examples on your notebook. Jazakallah fi amanillah.